25,000 का जो मार्क है उसको बीटीसी ना काफी स्ट्रांगली डिफेंड करने का कोशिश कर रहा है। OKX के जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, दे आर प्लानिंग टू सेट अप इट्स वॉलेट सर्विस फॉर pouring into the NFT space. Geo They is will like be the biggest competitor. doing different verticals but with different app, but Twitter will just integrate it into a singular app and उसी से सब चीज कर सकते हैं, like a full ecosystem जो Geo बना है वो ecosystem नहीं बना कि एक ऐप में सब चीज combine करके देना चाह रहे। Hello guys, so we are back again with another episode of A2Z Crypto Weekly Podcast. So हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले इस वीक के मेजर अपडेट्स और न्यूज़ के ऊपर, और बिना देर के आप अभी तक लगता है आप लोग सब ने सब्सक्राइब कर ही चुके हैं हम लोग को। अगर नहीं किए अभी तक, मुझे नहीं पता आपको क्या करना चाहिए, बस नीचे कुछ एक लाल बटन होगा उस पर क्लिक कर देना है। और क्रिश और शौविक, हमने बहुत व्यूअर से थोड़ा पता भी चला है कि लाइक उनको वीडियोस नहीं दिख रहे सब्सक्राइब करने के बाद। सो अगर आपको वीडियोस नहीं दिख रहे तो नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर दीजिए, बिकॉज आपको तब नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट विद दिस वीक्स पॉडकास्ट एंड कवर with the major news and updates that we will start with. So Krish, let's start with the first news. Hi everyone. तो आज का सबसे पहला जो न्यूज़ है वो काफ़ी बुलिश न्यूज़ है, और इस बुलिश न्यूज़ के कारण आपने लास्ट वीक थोड़ा पंप भी देखा था अराउंड 4-5% का। तो Grayscale wins their lawsuit against SEC. तो Grayscale जिनका GBTC था, they wanted to convert their GBTC to a spot ETF, spot Bitcoin ETF. तो SEC ने उसको अपोज किया था, बट दे हैव लॉस्ट इट, एंड SEC के पास अभी चांस है टू गो बैक एंड refile a case against Grayscale, but because this judgment is already there, मुझे नहीं लगता कि अभी इसके अगेंस्ट में कोई भी बड़ा जजमेंट आएगा. So it has now become a case of when this spot ETF is approved rather than an if. तो बहुत ही बुलिश न्यूज़ है, क्योंकि वन स्पॉट ETF is approved, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है, हेज फंड्स जो है, फैमिली ऑफिसेस जो है, जो कि अभी तक क्रिप्टो में नहीं जाना चाहते थे, दे विल गो डायरेक्टली to these institutions and buy spot ETF, and this will bring a lot of liquidity and new money, जिसको हम लोग बोलते हैं, in the crypto space. So very bullish news to start the day with. In the other news, SEC has also charged an entertainment company for selling their NFTs. तो NFTs को अभी टारगेट किया जा रहा है as unregistered security और unregistered offering. Similarly, ICO times में भी जो ICOs किए थे, and if USA based personnel invested in ICOs, तो SEC भी उसके पीछे गए थे. बहुत सारे ICOs को सेटल करना पड़ा था. Some of the biggest ones being EOS, जिनको like $25 million का फाइन भी हुआ था. So I think anybody who is now taking the NFT route to mint new NFTs, they will be sued by the SEC. तो बहुत सारे NFT स्कैम्स ऐसे हुए हैं जहाँ पे celebrities, movie stars, everybody came and launched their own NFT. Even Donald Trump launched his own NFT. So देखते हैं कि SEC डोनाल्ड ट्रम्प को बोलते हैं क्या ये unregistered security है, or can it be that Donald Trump has issued this NFT but not for US citizens. So I don't have exact idea around it, but if SEC is going after NFT companies, Mr. Trump might be sued. I think Krish, SEC is going after money. So after losing important cases, so they know that they can't sue either XRP or Grayscale, so it's better to sue an NFT because they will not have a big team of lawyers to fight SEC. और like this also brings like small wins for SEC, right? तो SEC का भी credibility थोड़ा hampered हुआ है, and they are on the back foot. So if they go for small wins, maybe later on again they will go for a bigger push. तो इसीलिए मुझे लगता है कि Donald Trump may be in the firing line sooner or later. So if he has not allowed any US citizen to invest in Trump NFT, तो फिर ठीक है, it is not under SEC's jurisdiction. But अगर कोई भी US citizen invest किए है and SEC gets a complaint, or SEC sees that it's an unregistered security, so he is going to be in some trouble.
इसके साथ हम लोग आते हैं OKX के न्यूज़ पे। तो OKX के जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, दे आर प्लानिंग टू सेट अप इट्स वॉलेट सर्विस फॉर फॉरवर्डिंग इनटू द NFT स्पेस। तो दिस इज नॉट मेजरली फॉर अ पुश इन द एक्सचेंज। तो OKX का एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट सोल्यूशन है एंड ऑल्सो एक चेन है। तो दे आर ट्राइंग टू पुश पीपल फॉर OKX wallet solution. So this is similar to CoinDCX's non-custodial wallet or DeFi wallet solution called Octo. So I think why they are doing it, because if you can use a wallet, you can easily move your asset between a wallet and a crypto exchange. So CoinDCX का advantage है, they can allow people to invest or on ramp INR and then buy the crypto and move to Octo. OKX का advantage है, people who already know how to use this wallet can directly send the money to this wallet, hold it in the non-custodial wallet, and they can move back to the exchange to trade and then again move it back. तो जैसे हम लोग बहुत बार कह चुके हैं कि सेंट्रलाइज नॉन कस्टोडियल प्लेटफॉर्म इज द वे टू मूव फॉरवर्ड। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि CoinDCX, OKX, इवन Coinbase ने एक सब्सक्रिप्शन मॉडल स्टार्ट किया है फॉर इट्स हैवी यूजर्स। तो ऑल दीज पीपल आर मूविंग इन अ डायरेक्शन जहाँ पे centralized non-custodial solution will be a part of the daily offering, जहाँ पे आपको centralized and decentralized दोनों spaces के best of the world's advantage मिल सकते हैं। तो मतलब मेरा यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है कि यहाँ पे वॉलेट्स को ज़्यादा क्यों पुश किया जा रहा है rather than exchanges, like all the exchanges that are overseas now, जैसे बिटगेट है, फिर अभी OKX है, so वो इंडिया में एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, इंडिया में यूज़र बेस को टैप इन करना चाह रहे हैं, बट दे आर नॉट कमिंग थ्रू द एक्सचेंज रूट जो हम लोग पहले देखते थे कि they are trying to first solve the on and off ramp problem, then go into the wallets and other like DeFi stuffs. अभी पहले DeFi को रखा जा रहा है and मतलब exchanges को push नहीं कर रहे हैं वो लोग initially. So why this major change in approach? on and off ramp अगर OKX अभी करना चाहता है for their exchange solution, तो वहाँ पे they have to comply by the India's EML Act, जहाँ पे OKX का कोई local subsidiary को they have to create a local subsidiary, they have to formalize, they have to be part of the KYC AML policy and they have to register as a FIU under the PMLA Act. तो इससे काफ़ी इजी है कोई भी वॉलेट को प्रमोट करने के लिए। एंड ऑन एंड ऑफ रैम्प के लिए एनीवेज दे कैन स्टिल वर्क विद ऑन रैम्प, ट्रांजैक्ट एक्सेट्रा, जो भी INR ऑन एंड ऑफ रैम्प करते हैं। तो इफ पीपल रियली डोंट नो हाउ टू डू ऑन एंड ऑफ रैम्प, दे कैन इजिली यूज दिस वॉलेट्स विद ऑन एंड ऑफ रैम्प सॉल्यूशंस टू डू द ऑन एंड ऑफ रैम्प। बट यहाँ पे एक्सचेंज को कोई भी ड्यू डिलिजेंस या कोई भी गवर्नमेंट के सेंट्रलाइज पॉलिसी को फॉलो नहीं करना पड़ता है। तो इसीलिए मूविंग फॉरवर्ड everybody will say, okay, I am a crypto exchange where I do not serve Indians in India, but I serve these wallets. So whoever is creating a wallet is a decentralized wallet. अगर उनको ट्रेड करना है तो they can move their asset from their non-custodial wallet to OKX exchange and trade, right? So that way regulatory push जो होता है कोई भी एक centralized region में, कोई भी एक country में, they don't have to follow that regulatory push. And at the end of the day they can always say कि ठीक है, अगर वो ईरान से है, अगर वो नॉर्थ कोरिया से है, I will not allow them to use my exchange, but they can still use my non-custodial wallet. So that is where they are trying to play. इसको regulatory arbitrage बोलते हैं हम लोग हमारी भाषा में। तो बेसिकली इट मीन्स कि अगर कहीं पे कोई ज़्यादा रेगुलेशंस है एंड यू डोंट वांट टू फॉलो इट, सो हाउ डू यू मूव एंड गेट इनटू द मार्केट विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉज? So this is what OKX is trying to do. Binance is doing the same thing using their P2P marketplace in different countries, चाहे वो इंडिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, any countries where crypto is banned, Binance is there using their P2P services. So this is what OKX is trying to do here as well. And ये जो narrative है centralized non-custodial platform का, this is going to come in a big way in the next bull market or after the next bull market, because this is also the right way of moving the industry forward. तो जैसा हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था, Binance will end its support for BUSD. तो Binance has already announced that, क्योंकि February 2024 में Paxos BUSD को 1:1 में रिडीम करना बंद कर देंगे एंड मिंट तो करना उन्होंने ऑलरेडी बंद कर दिया है। तो इसीलिए Binance will also move its BUSD support. तो इससे ये हुआ कि Binance का जो सेल्फ ब्रांडेड स्टेबल कॉइन था that is coming to an end, but इसका मतलब ये नहीं कि Binance will not invest or not co-brand other stable coins. शायद moving forward
वो डायरेक्टली कोई स्टेबल कॉइन्स को लॉन्च या मिंट ना करे, बट दे माइट एक्चुअली बी शैडो ओनर्स फॉर बहुत सारा स्टेबल कॉइन। सो फॉर एग्जांपल अभी TUSD को उन्होंने मिंट किया है, यू नो दे आर हेविली पुशिंग इनटू totally decentralized stable coins जहाँ पे जैसे MakerDAO हो गया। So probably they will also invest money in other projects जहाँ पे stable coins लेके काम किया जा रहा है and list them on their platform। क्योंकि Binance का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है अभी कि USDT and USDC both the markets are not under their control। तो USDT is from Tether and USDC is from Circle। तो अगर कोई भी Binance के साथ सपोर्ट बंद कर देता है तो Binance will be in big trouble। तो Binance इसीलिए चाहता है कि अपना कोई USD स्टेबल कॉइन हो जिसको वो रीबैलेंस कर सके चीपली, जिसको वो पूरा कंट्रोल कर सके। सो दैट इज वेयर बाइनेंस वांट्स टू आइदर को ओन अ स्टेबल कॉइन और को ब्रांड अ स्टेबल कॉइन और बी अ मेजॉरिटी इन्वेस्टर इन अ स्टेबल कॉइन। बट इससे रिस्क ये है कि अगर बाइनेंस को ये स्टेबल कॉइन मतलब आगे बढ़ने दिया जाता है तो बाइनेंस विल एक्चुअली बी पुशिंग द स्टेबल कॉइन सो मच सो दैट कि USDT और USDC का मार्केट शेयर कम हो जाए एंड ये आगे बढ़े। तो in the interest of the US government, this is something they don't want to happen। and इसीलिए मुझे लगता है कि Binance के जो भी stable coin efforts है in the near future, they will not be so active, so they will focus more on the investing side rather than co-branding of a new stable coin। तो इसके साथ हम लोग आते हैं एक बहुत ही मज़ेदार न्यूज़ में जो कि है x.com को लेके। तो जैसे आपको सबको पता है इलॉन मस्क ने जब ट्विटर खरीदा था तो उन्होंने बहुत ओपनली कहा था कि उनका एक विजन है कि लोग इजीली एक दूसरे को पैसे भेज सके, गाना भेज सके, यू नो मैसेज भेज सके, ट्वीट शेयर कर सके। तो दिस वाज हिज विजन। तो इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ यू नो स्पॉटिफाई, ट्विटर, पेपैल, यूट्यूब, फेसबुक इन वन ऐप। तो एक सुपर ऐप बनाना चाहते हैं। और जितना मुझे पता है इलॉन मस्क इज ऑल्सो एंड ट्विटर इज ऑल्सो ट्राइंग टू गेट अ वॉलेट लाइसेंस फॉर देयर ट्विटर। तो इससे क्या हो जाएगा कि एटलीस्ट अगर वो कंबाइन करते हैं पेपैल के सर्विसेज के साथ अपने सर्विसेज को, दे विल एटलीस्ट बी एबल टू पीपल विल बी एबल टू सेंड मनी यूजिंग पेपैल, और अगर वॉलेट्स है तो यूजिंग क्रिप्टो इवन। तो लोग कह रहे हैं कि डॉज कॉइन जो कि सेमी ऑटोनोमस क्रिप्टो करेंसी है, दैट विल बी दी यू नो करेंसी ऑफ चॉइस ट्विटर पे। बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अगर वो एक वॉलेट बनाते हैं तो आई थिंक ही विल बी ओपन टू ऑल काइंड्स ऑफ करेंसीज। मे बी दे विल स्टार्ट विद अ फ्यू बट ऑल काइंड्स ऑफ करेंसीज कैन बी डन। एंड अगर ये विजन होता है so this will be under the regulatory soup for a lot of countries। क्योंकि जैसे आपको पता है फेसबुक का जो लिब्रा प्रोजेक्ट था इट वाज आल्सो एमिंग द सेम काइंड ऑफ थिंग। तो लिब्रा प्रोजेक्ट को शट डाउन कर दिया गया क्योंकि EU, US, सिंगापुर, बहुत सारे गवर्नमेंट्स में इवन इंडिया अपोज्ड इट, एंड दैट्स आल्सो द राइट थिंग टू डू। बट अगर वो लिब्रा प्रोजेक्ट के तरह ना करके पेपैल की तरह करते हैं जहाँ पे यू लिंक योर बैंक अकाउंट एंड यू कैन मूव मनी, या फिर गूगल पे की तरह करते हैं यू लिंक योर बैंक अकाउंट एंड यू कैन मूव मनी, बट आप एक साल में या एक या दो बार ही सिर्फ चेंज कर सकते हो अपना जुरिस्डिक्शन एंड यू कैन नॉट पे इन अदर जुरिस्डिक्शन यूजिंग द लोकल फिएट। तो इस तरीके से कुछ कंसेशंस के बाद दिस माइट एक्चुअली बी अ वेरी स्मूथ ऑपरेशन। तो समझ लीजिए दिस विल बी लाइक Paytm plus YouTube plus Facebook plus Twitter, but only available to Indians। तो अगर आप चाइना चले गए तो वहाँ पे शायद WeChat plus this plus that। तो basically this is the kind of concept that Elon Musk is trying to do, at least for the implementation stage। और अगर ये होता है तो I think this will be the world's first super app। चाइना में है, चाइना में WeChat है बट यहाँ पे नहीं है। हाँ, Jio is a very good example। Jio Financials and Jio Services, Jio Movies। So Jio is like doing different verticals but with different app, but Twitter will just integrate it into a singular app and उसी से सब चीज कर सकते हैं। Like a full ecosystem जो Jio बना है वो ecosystem नहीं बना कि एक ऐप में सब चीज कंबाइन करके देना चाह रहे। टाटा भी बना रहे हैं अभी, अगर आप देखते हो उनका एक्विजिशन स्ट्रेटेजी, बिग बास्केट, 1mg, यू नो, तो हर चीज उसी डायरेक्शन में जा रहा है कि हाउ यू कैन बी अ सुपर ऐप। तो टाटा का तो टाटा हैज इट्स ओन टाटा AIG इंश्योरेंस। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है इनके पास ऑलरेडी है। व्हाट दे वांट टू डू इज हैव मोर सर्विसेज जो कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ। तो स्टार्टअप में डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है रादर देन योर आइडिया।
तो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व हो जाता है कि आई हैव अ नेटवर्क ऑफ पीपल और आई हैव अ नेटवर्क ऑफ subsidiaries which can distribute my products, तो आप कुछ भी प्रोडक्ट बना लो, it will be a success. Right. Thanks to our fantastic sponsor that makes the show possible, XREX, a global leader in fiat to crypto exchange. XREX is our preferred crypto exchange from 2020. If you do not have an account with XREX, consider signing up using the link in the show note below. Trade cryptocurrencies with USDT, USDC, or directly with USD on XREX, one of the world's safest and most secure crypto exchanges, which is invested by Taiwan's National Development Fund and run by international cybersecurity experts. You can also send crypto for free to other XREX users with XREX BitCheck, which escrows your funds with a contract, making P2P transactions much safer and easier. Or use its advanced grid trading feature to DCA your crypto. Link in the comments below. इसी के साथ हम लोग आते हैं गाला न्यूज़ के ऊपर. तो गाला's फाउंडर्स आर बेसिकली suing each other for corporate waste allegations. तो उनके जो फाउंडर्स हैं दे हैव फाइल्ड केसेस एंड अगस्त 31 में दिस वाज फाइल्ड इन यूटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूएस. एंड अब तो ये टाइम ही बताएगा कि लाइक हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग, बट बेसिकली ये कह रहे हैं कि 130 मिलियन का मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुआ है. एंड विद दिस गाला's market share has gone down rapidly. I think 25-30% गिरा है, and most of the money has rotated into other gaming or Web3 gaming companies. इसके साथ हम लोग आते हैं एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ पे. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ इसलिए है क्योंकि MakerDAO के को-फाउंडर ने ये प्रपोज किया है कि दे माइट यूज सोलाना's कोड बेस फॉर अ नेटिव चेन. तो MakerDAO जो कि सबसे पहला DAO बेस्ड प्रोजेक्ट है फॉर ऑन चेन ट्रेजरी एंड फॉर यूनिटाइज स्टेबल कॉइन ग्लोबली. तो उन्होंने अभी ये कहा है कि अभी दे माइट यूज सोलाना's कोड बेस फॉर नेटिव चेन. तो एक साइड से तो ये काफ़ी बुलिश न्यूज़ है क्योंकि दिस प्रूव्स कि MakerDAO इज थिंकिंग लॉन्ग टर्म, बिग टर्म. एंड अगर वो इथेरियम पे ही रहते हैं, it will be very difficult because gas fees, transaction speed and everything is not there for MakerDAO or DAI, especially to become a universal stable currency, which is backed by crypto but not local fiats. तो इसलिए ये एक पॉजिटिव साइन है. बट नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इफ़ यू आर ऑन इथेरियम और इफ़ यू आर ऑन सम चेन विच इज़ हैविंग नेटिव सपोर्ट ऑफ USDT और USDC, तो वहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मल लोगों को मिंट करना, रिडीम करना काफ़ी इजी हो जाता है. बट जब भी आप कोई ऐसा चेन में जाते हो जहाँ पे देयर इज़ नो USDT USDC सपोर्ट ऑफ नेटिव मिंटिंग एंड बर्निंग, तो वहाँ पे लोगों को ब्रिज करना पड़ता है USDT USDC. एंड दिस ब्रिजिंग प्रोसेस सबको नहीं पता है. तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पीपल इन द क्रिप्टो स्पेस probably don't know how to bridge and they don't want to learn also. तो अगर MakerDAO ऐसा नेटिव चेन बनाते हैं सोलाना को ब्रिज करके, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वहाँ पे नेटिवली USDC USDT मिंट होता है कि नहीं. अगर ये मिंट होता है वहाँ पे एंड USDC USDT बोथ सपोर्ट दिस चेन, तब दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी. अदरवाइज आई थिंक दिस स्ट्रेटजी माइट बैकफायर. I think Krish, like what we have seen अभी तक, like अगर जैसे अभी आर्बिट्रम में हुआ, ऑप्टिमिज्म में भी, तो जहाँ पे ज्यादा यूजर्स आ जाते हैं लाइक USDT USDC को लगता है कि लाइक दे कैन गेट अ लॉट ऑफ यूजर्स ऑन दैट चेन, वो अभी नेटिवली भी बहुत सारे चेन पे वो मतलब ओपन कर रहे हैं अपना सपोर्ट. सो मे बी इफ MakerDAO कैन मेक इट हैपन, लाइक क्योंकि MakerDAO इज ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. सो इफ दे कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ यूजर्स ऑन देयर नेटिव चेन, सो देन मे बी इन द फ्यूचर कोई स्टेबल कॉइन उसको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे मतलब मिंटिंग और बर्निंग बंद भी कर रहे हैं. तो ओमनी चेन जो था वो उन पे USDT इज शटिंग डाउन इट्स मिंटिंग एंड बर्निंग. तो एक नेटवर्क इफेक्ट तो डेफिनेटली होता है कि अगर काफ़ी सारा लोग यूज़ कर रहे हो उस चेन को, USDT USDC जनरली सपोर्ट्स दोस काइंड ऑफ चेन्स इजी. पर एज आई सेड कि अगर नहीं करते हैं देन इट विल बी अ बिग गैम्बल. तो यहाँ पे DYDX ने भी वैसा ये गैम्बल लिया है. They are migrating. They have been migrating for a while from staff nets to they are creating their own chain.
एंड इट्स कॉल्ड DYDX एक्सचेंज। तो इससे क्या होगा, देयर ट्रांजैक्शन फीस का जो कॉस्ट है इट विल कम डाउन ड्रास्टिकली। बट अगेन द प्रॉब्लम इज कि अगर DYDX को यूज करना है, यू हैव टू नो हाउ टू ब्रिज USDT एंड USDC। तो इट्स नॉट, till now it will not be supported by USDT USDC native minting। तो it will be interesting to see कि अगर इस पे USDC USDT सपोर्ट नहीं रहता है to do native minting and burning, तो किस तरीके से ये DYDX स्केल करते हैं and what will be the volume before and after। so this might be a very good use case जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि if USDC USDT is not there, how does things actually look like। तो DYDX एक काफ़ी बड़ा नाम है, तो होपफुली दिस विल बी लाइक अ एक्सपेरिमेंट विच अदर्स कैन लर्न फ्रॉम। बट रिस्की तो है, मतलब काफ़ी रिस्की है, बिकॉज दे आर बेटिंग देयर होल बिजनेस एंड देयर बिजनेस मॉडल एंड देयर फ्यूचर डायरेक्शन बाय बिल्डिंग देयर ओन चेन। तो इसी के साथ हम लोग फर्स्ट हाफ ऑफ द न्यूज़ कवरेज पे ख़त्म करते हैं एंड शौविक विल गिव सम juicy tidbits of the markets। Hopefully good decisions taken by you last week saved you all। नहीं तो आपका portfolio अभी लाल में होता। And also, can we get some next 100x tokens? We can invest and become millionaires by next bull run. That's very difficult to say। That's pure gambling। Okay, so moving ahead, सबसे पहले तो मैं अपना दर्शकों के पास से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि आज गला थोड़ा सा ख़राब है, तो वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी जो है वो थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ सकता है। तो चलिए हम लोग No worries। BTC till you can say us like कब तक बिटकॉइन अभी खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, वॉइस मैटर नहीं करेगा, वीडियो क्वालिटी मैटर नहीं करेगा। If you can say us like Okay। अभी बिटकॉइन खरीद लो and 10x हो जाएगा, I am okay to do it। ओके, तो लास्ट वीक का जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लास्ट वीक लगभग यहाँ पे इस जोन के आसपास BTC USDT जो है वो घूम रहा था इस प्राइस पॉइंट के आसपास। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक बार ये रिटेस्ट के लिए ऊपर जा सकता है, लेकिन आप लोगों को तब जाके बुलिश नहीं होना है। आप लोग को बुलिश कब होना है ये भी मैंने बताया था कि एक क्लोजिंग कैंडल का वो अच्छा खासा 30,000 के ऊपर जब तक नहीं होता है तब तक आप लोग एकदम से बुलिश मत हो जाना, क्योंकि ये जो है ना ये रिटेस्ट के लिए जा रहा है, फिर यहाँ पे सेलिंग आ सकता है। तो ऐसा ही हुआ है, देखिए यहाँ पे रेड कैंडल बना के फिर से ये नीचे की तरफ वापस आ चुका है, बहुत जल्दी वापस आया है। तो अगर इस रेड कैंडल को भी एक रेफरेंस पॉइंट मान के किसी ने अगर शॉर्ट पोजिशंस बनाए होंगे तो 5-5.5% का गेन पे भी बैठा हुआ होगा। ठीक है, तो वो एक अच्छा सा स्ट्रेटेजी था। अभी फिलहाल के लिए क्या देखना होगा हम लोग को, 25,000 का जो मार्क है उसको BTC ना काफ़ी स्ट्रांगली डिफेंड करने का कोशिश कर रहा है। तो आप लोग को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे डेली कैंडल्स वगैरह है जिसको छोटा छोटा कैंडल्स है, इसमें उतना डिटेल आपको पता नहीं चलेगा। इसको हम लोग आवरली में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से, सॉरी इसको क्लोज कर देते हैं। हाँ, यहाँ से देखिए 31 अगस्त से अगर हम लोग इस पॉइंट को, या फिर 1 सितंबर ही मान सकते हैं, 1 से लेके अभी हम लोग शूटिंग कर रहे हैं जिस डेट पे वो 5th है। ठीक है, 1 से लेके 5th तक ये एक जोन के अंदर ही फंसा हुआ है। इस टाइप का कैंडल्स जब भी आवरली टाइम फ्रेम में बनता है ना, तो आप लोग ये मतलब ध्यान में रखो कि ये तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे है कि जो यहाँ पे बुल्स हैं, ठीक है, वो 25,000 को डिफेंड करने का कोशिश कर रहे हैं और लगातार मतलब जोर से लगातार ये यहाँ पे कोशिश जारी है। इससे पहले भी यहाँ पे डिफेंड लगभग कर लिया था, फिर से वही वापस इस जोन में आके उसको डिफेंड करने की कोशिश चल रहा है। और जब ये 25,000 को ब्रेक करके नीचे की तरफ एक कैंडल का क्लोजिंग दे देगा, और मतलब अच्छा कैंडल का क्लोजिंग देगा डेली टाइम फ्रेम में, तब आप लोग नीचे की तरफ और ये जा सकता है। आप लोग उस टाइप मतलब उस हिसाब से अपना पोजीशंस को बना लो। और डेली टाइम फ्रेम में फिर से मैं वापस चल के एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, जैसे कि मैंने लास्ट वीक को डिस्कस किया था कि हो सकता है कि RSI में आपको मूवमेंट दिखना मिले, लेकिन बेस्ड ऑन दैट आपको जो डिसीजन नहीं लेना है। आप लोगों को बहुत सारा इंडिकेटर्स भी चेक करना है। RSI तब इस जोन पे ओवरसोल्ड जोन पे था, तो 20 से लगभग आप देखिए 51 जो है वो गया है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ देखिए, RSI ओवरसोल्ड में नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे प्राइस का फॉल देखिए कितना ज़्यादा हो चुका है। तो फिर वही है कि मतलब आपको बुलिश तब होना है जब एक पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक कर रहा है, और वो भी मतलब एक रेजिस्टेंस लेवल को वो ब्रेक कर रहा है तब। क्योंकि तब होता क्या है कि जो शॉर्ट्स बने होंगे वहाँ पे, शॉर्ट्स का एक्चुअली वहाँ पे स्टॉप लॉस होता है। तो स्टॉप लॉस जब मतलब स्क्वायर ऑफ फॉलो पोजिशंस करते हैं ना, तो और तेज़ी से मार्केट ऊपर की तरफ भागता है। ये मैं दोनों साइड ही ऐसे
ये चीज़ मतलब जायज़ है। तो बियरिश साइड में भी आप लोगों को उसी तरह से जो बुल्स का जो डिफेंडिंग लेवल है, जैसे 25,000 नज़दीक लेवल है, तो उसको जब भी तोड़ता है तो बुल्स लोग क्या करेंगे, पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, क्योंकि लॉस में तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो बैठे रहेंगे कि जब तक बीटीसी 20,000 नहीं जाता, 18,000 नहीं जाता, तब तक वो होल्ड करके बैठेंगे। जो ट्रेडर हैं वो लोग तो क्लोज कर देंगे। इन्वेस्टर्स हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बहुत बाइंग करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि वही है कि 30,000 से 5,000 नीचे 25,000 को क्रॉस कर रहा है, तो फिर 1-2 दिन वेट करके आप लोग वहाँ पे पोजीशंस बनाओगे थोड़ा सा, फिर से जब नीचे आएगा फिर आप थोड़ा सा पोजीशंस बनाओगे। ये इन्वेस्टर लोगों के लिए हो गया, ठीक है। तो बीटीसी का फिलहाल ये सीन है। इथेरियम का भी वही लगभग सेम ही हालत है, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं अभी। तो आप लोग यहाँ पे ये लेवल जो है 1600 का ये मार्क करके रखो। इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है एक कैंडल विथ वॉल्यूम, तो फिर आप लोग नीचे की तरफ देख सकते हो। ऊपर की तरफ तो फिलहाल आप लोग सोचना भी मत इथेरियम में। कब सोचोगे, जब ये चैनल के अंदर आएगा। और ट्रेडर लोग जो एग्रेसिव ट्रेडर हो वो इसका हाई को ब्रेक करने का इंतजार करो, 1730 1740। इसके ऊपर आप लोग बुलिश साइड में थोड़ा सा देख सकते हो, लेकिन अपसाइड जो है ना वो काफ़ी यहाँ पे लिमिटेड है और काफ़ी रिस्की है। तो अगर इन्वेस्टर हो तो फिर तो सही है, यहाँ पे थोड़ा बहुत अक्यूमुलेट करो और नीचे जाएगा थोड़ा बहुत अक्यूमुलेट करो, लेकिन ट्रेडिंग के लिए डाउन साइड में कन्विंसिंग पोजिशंस ज़्यादा होगा, ना कि अप साइड में। ये इथेरियम हो गया। नेक्स्ट मैं मेकरदाओ का थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे कि मेकरदाओ का न्यूज़ क्रिश ने इससे पहले बताया, तो आप लोग देखिए बीटीसी का जो प्राइस एक्शन है उसके साथ अगर आप मेकरदाओ का प्राइस एक्शंस को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ क्या है, एक बुलिश साइन है, फिर से ये जो ईएमए है इसको रिटेस्ट के लिए आ रहा है मेकरदाओ, ठीक है। तो जब तक इस कैंडल के नीचे नहीं जाता है तब तक क्या है, मेकरदाओ बुलिश ही माना जाएगा। इस कैंडल को अगर पूरा मतलब एनगल्फ करके वो नीचे की तरफ रेड कैंडल बनाता है बड़ा विथ वॉल्यूम, तब ये मेकरदाओ नेगेटिव सेंटीमेंट होगा, लेकिन फिलहाल उसका कोई मतलब साइन नहीं दिख रहा है। तो आप लोग अकॉर्डिंगली मेकरदाओ में भी थोड़ा बहुत पोजीशंस के बारे में देख सकते हो। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि लाइक पोजीशन मतलब चार्ट वाइज तो मेकरदाओ वही कह रहे हैं कि लाइक इट्स नॉट येट इन द बियर मार्केट, और मतलब इट्स नॉट येट इन द लाइक सेल जोन और डेथ जोन। तो बेसिकली यू कैन स्टिल टेक पोजीशन इन मेकरदाओ। बट एक चीज ये है कि मेकरदाओ इज ऑल्सो कोरिलेटेड विद बिटकॉइन। फॉर द टाइम बिंग मेकरदाओ इतना बुलिश इसलिए है क्योंकि दाई का जो डिमांड है काफ़ी ऊपर है, और दाई का डिमांड जब भी ऊपर जाता है तो जनरली मेकरदाओ का प्राइसेस भी उसी के साथ साथ ऊपर जाता है। और दाई का डिमांड ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि स्टेबल कॉइन्स का जो सिनारियो है वहाँ से BUSD इज गॉन, तो USDT, USDC, दाई एंड देन सम अदर्स। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेकरदाओ के चार्ट्स के ऊपर उतना फोकस ना करके यू कैन ऑल्सो लुक इनटू द स्टेबल कॉइन चार्ट्स कि किस तरीके से दाई इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ द गैप विच BUSD होल हैज क्रिएटेड। तो it's not always related with technicals, so you have to also consider market condition क्या है। I'm actually talking about the traders कि उन लोगों को क्या करना होगा, क्या करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि लास्ट एक वीडियो में हम लोग जो बाईबैक है ना, ये वाला यहाँ पे मेंशन किए थे, तो मेकरदाओ में बाईबैक हुआ था। तो आप लोग ये मतलब एक थंब रूल की तरह मान सकते हो ऐसे कि कोई भी कंपनी अगर अपना शेयर्स बाईबैक कर रहा है ना, तो वहाँ पे प्राइस, वहाँ पे ऐसा कुछ इंसिडेंट होने वाला है जो कि कंपनी का मैनेजमेंट को पता है, आप लोगों को नहीं पता है क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में अभी आया नहीं है। तो जैसे ही बायबैक होता है आप लोग तुरंत वहाँ पे, मैं तो कहूँगा कि 80% प्रोबेबिलिटी है उसमें घुस जाओ। क्योंकि कुछ दिनों बाद ये आने वाला है न्यूज़, तब जाके आप लोगों को पोजीशंस बना के कोई फायदा नहीं है। अभी जो मेकरदाओ का न्यूज़ आया है, बायबैक देखिए कितना पहले हुआ है। आई थिंक 600 के आसपास, 500-600 के आसपास करीब बायबैक अनाउंस किया गया था। बायबैक हुआ है, तो फिर अभी तो लगभग डबल हो चुका है बायबैक से। तो उस टाइम पे अगर कोई पोजीशंस, तो आप लोग ये सब चीज़ देख के रखो, कोई भी कॉइन्स में कहाँ पे बायबैक हो रहा है, और अच्छा कॉइन्स में, ऐसा नहीं कि कुछ सिटी कॉइन्स में बायबैक हो। या हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, करेंगे कि कौन सा कॉइन्स में फाउंडर्स सेल कर रहे हैं या प्रोजेक्ट टीम का प्रोजेक्ट सेल कर रहा है। तो बेसिकली बायबैक का उल्टा साइन होता है ये कि दिस इज अ टाइम फॉर यू टू गेट आउट, क्योंकि अगर फाउंडर्स सेल करना स्टार्ट कर दिए तो व्हाई शुड यू होल्ड द कॉइन, व्हाई शुड यू एक्चुअली उन लोग का खुद का ही अपना कॉइन पे ऊपर ये नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो इसीलिए वो लोग सेल कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई मतलब प्रॉफिट को थोड़ा सा लेके जाना चाहता है, लेकिन आप लोग को देखना होगा कंटिन्यूअस बेसिस पे कौन सेलिंग कर रहा है, वहाँ पे मंथ ऑन मंथ, फिर वीकली बेसिस पे आप लोग को थोड़ा सा ट्रैक करना होगा। और एक चीज़ मैं अपना दर्शक को लेके बताना चाहूँगा कि
बहुत जल्दी हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोगों का जो भी क्वेरी होगा वहाँ पे वो आप लोग डायरेक्टली आके हम लोग का चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं हम लोग का, तो फिर ट्रेडिंग में आप लोग को वो काफ़ी हेल्प होगा मेरे हिसाब से। ओवर टू यू क्रिश। तो चलिए हम लोग दिन के सेकेंड हाफ ऑफ द न्यूज़ को थोड़ा देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग विथ L2, तो इथीरियम स्केलिंग सॉल्यूशंस जो कि L2s है, देयर आर रफली 29 L2s व्हिच आर बीइंग मॉनिटर्ड। $7.1 बिलियन का टोटल लॉक्ड एसेट्स है, जिसमें से $4 बिलियन है आर्बिट्रम पे। सो ओवर 50% ऑफ द लॉक्ड एसेट इज ऑन आर्बिट्रम, followed by optimism and base. So basically arbitrum, optimism, base, they combine for 5.6 billion of this $7 billion. So base has overtaken zk sync. DYDX is around $300 million, but मेरे हिसाब से this is going to go down, because most of the time if people don't know how to use it, they will get out of this ecosystem, join another ecosystem. So as a guess, I would say कि यहाँ पे जो अभी top 3 है, they are going to maintain their supremacy for some time, but कुछ कुछ projects है जो कि ऊपर आएंगे, जैसे Mantle, Polygon ZK, VM और Linea and Immutable X. So these projects are very good projects जो कि अभी तक मार्केट कंडीशंस के कारण इतने TVL लॉक्ड एसेट नहीं रख पाए हैं, या फिर they have not launched their mainnet, whatever is the scenario, but these are the assets which will probably come in the top 5 or top 10 sooner or later. कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स है जो स्टाकनेट के ऊपर है, जैसे ऑफ कोर्स स्टाकनेट, DYDX जो अभी तक स्टाकनेट के ऊपर थे, दे आर मूविंग अवे. सोरेयर एक NFT बेस्ड फुटबॉल का गेम है, जहाँ पे यू कैन, और नॉट फुटबॉल, बास्केटबॉल और MLB जो कि बेसबॉल है US के, उसके ऊपर है, एंड दे आर ऑल्सो यूजिंग स्टाकनेट. तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे स्टाकनेट के SDK को यूज़ करके पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है. तो राइनो 5 भी एक वैसा ही प्रोजेक्ट है, और Immutable X भी वैसा ही प्रोजेक्ट है. सो बेसिकली ऑल दीज प्रोजेक्ट्स आर using Starknet's infrastructure to build their own chain, which is a very bullish sign for Starknet, because it proves कि Starknet का जो infrastructure है जो काफ़ी अलग है सबसे. तो moving forward it will be very interesting to see किस तरीके से L2s Ethereum को scale करते हैं, and maybe some other L1s also become L2s. तो जैसे Solana अभी उन्होंने recently कहा था कि like they might consider becoming an L2 on Ethereum. तो this opens up a whole lot of possibilities for the Ethereum ecosystem, because then liquidity जो है, जो कि हर chain में locked है, it can go to other chains as well. So it will be unified liquidity, which will make the markets much more stable, much more unified. तो इसीलिए हम लोगों ने इसको आज कवर किया है. Hopefully we can revisit in maybe 6 months time or 3 months time and see if our prediction or if my prediction is actually correct or not. So Krish, इसमें like for the base, अभी जैसे हम लोग ने देखा आर्बिट्रम ऑप्टिमिज्म का एक राइड चला था जहाँ पे ऑल प्रोजेक्ट्स वर कमिंग देयर. नाउ बेस हैज कम इन, एंड फ्यूचर में हो सकता है जेके सिंह, लीनिया, आप जैसे बोलो स्टार्कनेट. सो आई थिंक देयर इज लाइक एक टाइम पीरियड आता है जहाँ पे मेजर प्रोजेक्ट्स आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन चेन टू अनदर, और नए प्रोजेक्ट्स भी जो बना रहे हैं उस टाइम पे they are coming to that chain because that chain is getting that exposure. Like base का आप अगर देखे हो, so base was getting a lot of exposure बीच में, because a lot of NFT projects and everyone was trying to get coins. into base. Yes. Or scam coins. So that's where I think most of the people start looking at a ecosystem that okay, there is some activity, so जाके we should also monetize, and then from there on, if the chain is really good and support कर सकते हैं उतने लोगों को, then from there on the journey starts. So अभी तक जैसे आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का बताया कि उनका उतना they are not on the above side of the list. So maybe because उनका नाम अभी तक उतना बाहर नहीं आया and उतने सारे लोगों का attraction नहीं मिला उनको. But maybe before the bull run, we can see a lot more of these projects coming up, getting a lot more of volume and getting more investors and those scam projects, as you call it, on their chain, so that they get a lot of exposure and then they can build on top of it. और आई थिंक कल ही मैंने एक पोस्ट देखा था जहाँ पे Coinbase के CEO ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था कि 10 things that he is very bullish about in crypto that people should build, and if he is one of the builders now, he should focus on that.
तो वहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बताया गया, P2P, ऑन चेन P2P। तो बेसिकली दिस इज समथिंग विच अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर ट्राइंग टू बिल्ड, किस तरीके से P2P किया जा सके यूजिंग AI, यूजिंग ऑन चेन क्रेडेंशियल्स, या यूजिंग some sort of scoring mechanism जहाँ पे आप बोल सकते हो कि this wallet is a valid wallet, this wallet is not from a scammer, etc. तो everybody is trying to do it, and मुझे लगता है कि ये इक्वेशन जो सॉल्व कर लेगा सबसे पहले, that chain will boom like crazy। और दूसरा हो गया गेमिंग। तो गेमिंग के लिए जो भी प्लेटफॉर्म परफेक्ट है, सोलाना भी आप देख लो कि गेमिंग से ही सोलाना का इतना नाम आगे आया है, एंड उनका जो वैल्यू है, it went from like couple of dollars to like $250 roughly. It was because of gaming. So that is the doorway for entering, allowing people to enter Web3. जो Web2 से Web3 में आएंगे, तो gaming is one of the most important things. So these are the things which will really make the chain go, boom or bust, मेरे हिसाब से। तो अगला जो बुल मार्केट आएगा, तो उसमें गेमिंग का इम्पोर्टेंस हर चेन के लिए बहुत ज़्यादा होगा, along with real world asset tokenization and on chain P2P exchange or on chain P2P solutions, जो भी है, मतलब smart contract based P2P on chain or P2P exchange, whatever. So hopefully we will see a lot of changes and things shaking up in the crypto space in the next bull market. But I just wanted to show this so that हमारे ऑडियंस को ये पता चले कि किस तरीके से अभी है L2s का मार्केट परसेंटेज, एंड आगे जाके वी विल अगेन रिविजिट एंड सी कि किस तरीके से वो चेंज होता है, बिकॉज आई थिंक इट्स डेफिनेटली गोइंग टू चेंज। सबसे पहले हमारे स्पॉन्सर्स एक्सरेक्स, एक फिएट क्रिप्टो एक्सचेंज का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिसके कारण ये शो संभव हो पाया है। 2020 से एक्सरेक्स हमारा पसंदीदा क्रिप्टो एक्सचेंज रहा है, जो कि पूरा विश्व में उपलब्ध है। अगर आपके पास एक्सरेक्स अकाउंट नहीं है, तो आप जल्दी से नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सरेक्स ऐप में कुछ स्पेशल फीचर्स ऐड किए गए हैं ताकि आप सेफली USDT, USDC, यहाँ तक USD द्वारा भी क्रिप्टो खरीद सकते हैं। एक्सरेक्स एक्सचेंज में ताइवान का नेशनल डेवलपमेंट फंड ने इन्वेस्ट किया है, जो कि एक सरकारी निवेशक संस्था है, और ये एक्सचेंज दुनिया के जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। आप इस ऐप में बिटचेक के द्वारा किसी भी एक्सरेक्स वॉलेट में फ्री में क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब P2P ट्रांसफ़र के लिए आपको कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं है। आप इसी एक्सरेक्स ऐप में बिटचेक कॉन्ट्रैक्ट द्वारा सुरक्षित तरीके से P2P कर सकते हैं। और एक फ़ीचर इसमें हाल ही में ऐड किया गया है, जिसमें आप ग्रिड ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटेड बॉट द्वारा किया जाता है। डाउनलोड लिंक नीचे मेंशन किया गया है। इसके साथ हम लोग आते हैं एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्टेक। तो स्टेक वाज बेसिकली अ बेटिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे यू कैन डू P2P बेटिंग। इट हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड ऑफ $40 million, एंड दिस एक्सप्लॉइटेड फ्रॉम द वॉलेट ऑफ द कंपनी इटसेल्फ। तो काफ़ी नुकसान हुआ है। आई थिंक प्रॉबली स्टेक विल नॉट रिकवर फ्रॉम इट, एंड Zach BTC ने क्लेम किया है कि 25 million was stolen from their BNB smart contract chain and BNB smart chain and Polygon network। तो अगर आप इस तरीके के न्यूज़ को फॉलो करना चाहते हो या जानना चाहते हो, you should follow somebody like Zach XBT because he is doxing people, mostly scammers who are doing these on their wallet addresses, and he's also talking about things that might happen। तो उन्होंने काफ़ी सारा बेस के रग पुल्स के पहले वार्न कर दिया था कि these are going to be rug pulled in the near future। तो कहीं कहीं तो ये भी हुआ है कि once he announced it and within one day this rug pull has happened। So if you are somebody who likes this kind of news, go and follow this guy, he's a gem। फिर आते हैं हम लोग दो ऐसे न्यूज़ पे जहाँ पे टीम प्रोजेक्ट को छोड़ के निकल रहा है। एक प्रोजेक्ट है Clockwork.xyz एंड दूसरा प्रोजेक्ट है आई थिंक TreasureDAO। तो these projects, तो Clockwork.xyz की टीम ने कहा है कि they are just quitting on the project and anybody is okay to fork from GitHub and can start the new project। और यहाँ पे TreasureDAO के जो founders है, they are selling their tokens, and मज़े की बात ये है their tokens are locked
and they are selling their lock token at a 50% discount. So you can probably imagine कि whales जो है, जो कि इस tokens को hold किए थे, या फिर और भी जो users है, most of them will go out. तो यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है. एक चीज़ तो ये है कि they are getting out of the system, but वो किसी और को ये tokens sell करके project handover करके निकलना चाहते हैं, because they already have the tokens, they have to do it so that they are not in control when the project moves forward. या तो दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि कोई एक फाउंडर है जो कि अपना टोकन्स को सेल करके प्रोजेक्ट से निकलना चाहता है. सो जनरली दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज अ नेगेटिव साइन, एंड ये बहुत बड़े क्रिप्टो टोकन्स के लिए भी हो चुका है, XRP के लिए भी हो चुका है, जहाँ पे XRP के CTO या फिर वन ऑफ द को फाउंडर्स को बहुत एक बड़ा XRP ग्रांट मिला था और वो हर साल सिर्फ डंप ही करते रहते थे. तो फाइनली हिज डंपिंग गॉट ओवर एंड people realize कि fine, now there will not be so much selling pressure. तो इसीलिए people are bit bullish about XRP right now. तो जब भी कभी भी tokens dump होता है या फिर founders अपना lock token sell कर रहे हैं, तो you should see कि is this a right time for you to go out. तो one of the whales who was the former Maxi, उन्होंने कहा है कि he is selling all his bags and opening shots against Magic. तो Actually, this is also yeah, बोलिए. This is also a sign where you can make some money, right? Like people are selling 50% डिस्काउंट में कोई फाउंडर अगर 50% स्पॉट प्राइस के डिस्काउंट में सेल कर रहा है ना, तो आप सोच लो कि वो उसका कॉन्फिडेंस तो गया है, उसको इंटरनली बहुत सारा चीज़ पता है जो कि बाहर वो नहीं लाना चाहता है. तो जो भी बचा कुचा है उसको लेके वो वहाँ से निकलना चाहता है. ये तो हो गया. तो आप लोग ऐसा होता है इक्विटी मार्केट में, तो ऐसा काफ़ी टाइम होता है कि अगर फाउंडर्स डिस्काउंट में कोई भी स्टॉक का वो सेल करते हैं स्पॉट प्राइस से, तो फिर जिस प्राइस पॉइंट पे वो सेलिंग या फिर वो डीलिंग हो रहा है, एक बार प्राइस घूम के वहां से वापस आता है, तो वहां तक तो एक बार जाता है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग जाके अभी तुरंत शॉर्ट मारना स्टार्ट कर दो उधर लेकिन आप लोग इसको मॉनिटर कर सकते हो उस तरह से. इसके साथ हम लोग आते हैं Friend.tech के टोकन के ऊपर. तो Friend.tech जो कि एक SocialFi प्रोजेक्ट था, where you can buy shares of your favorite influencers and stuff. They are going to change their name and rename it to something. But हमारे हिसाब से this is a very straightforward Ponzi scheme. If you are early to this kind of schemes, you would have made 100x or 1000x by now. और अगर आप अभी ये चीज़ सुन रहे हो तो your time is already gone. Do not go and invest your time and effort and money on getting into this Ponzi now, because I think version 1.0 has already failed, and hopefully they can reiterate and do something better in version 2.0. So to the extent कि ये scam इसलिए चला because nobody expected this kind of things to be there in the market. So similarly something which is new will always work in the short term. तो अगर आप इस तरीके के meme coins या scams पे विश्वास करते हो, you should always be early. Otherwise do not invest, because end of the day you will become the exit liquidity. मलाई कोई खा के चला जाएगा, ऊपर से छाछ ही रहेगा फिर. राइट. तो ये जो है ये एप्लीकेबल होता है बेन आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए. तो बेन आर्मस्ट्रॉन्ग इज क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर, एंड बिकॉज ऑफ हिज एसोसिएशन विद बेन कॉइन एंड रॉक पूल्स एंड शिलिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो उनको BitBoy Crypto ब्रांड से हटा दिया जा रहा है. मज़े की बात यह है कि BitBoy Crypto ब्रांड उन्होंने ही स्टार्ट किया था, एंड अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये बहुत अच्छा डिसीजन है, बिकॉज इफ़ ही डजेंट हैव दिस प्लेटफॉर्म तो वो लोगों को स्कैम नहीं कर पाएंगे, या वो लोगों को गलत चीज़ शिल नहीं कर पाएंगे, या वो लोगों को अपना एग्जिट लिक्विडिटी नहीं बना पाएंगे. सो फॉर दिस रीज़न आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि ये हो रहा है. और अगर आप साइड में देख पा रहे हो तो दे हैव ऑल्सो पार्टनर्ड विथ स्टेक, जो कि हैक्ड हुआ था रिसेंटली. So there might be something, there might not be something in this news, but ये है कि you should always see what kind of partnership people have when they are doing promotions and stuff. So for example जैसे A2Z Crypto जो हमारा company है, we are partnered with XREX. So XREX is a company which is based out of Taiwan, which has investment from the Taiwanese government, along with 3 of the 5 banks in Taiwan. तो ये उनका seriousness है, ये उनका track record है, which has made me believe, and I was working with them for the last 3 years to believe that they are a good partner for us. तो अगर कोई भी random exchange आके promote करता है
you don't believe them. You should go and check कि what is their value, what is their security like, who are their people. अगर वो publicly अपने face को reveal करते हैं कि नहीं, अगर centralized platform है and they don't want to show their faces publicly, so that's a very big red flag. So all these things are very important before you actually go for a branding and partnerships. And this gives you an idea ki if these people are legit or not. With this, I come to the end of our last episode, जो कि pre-recorded होगा. From next time, we will be live, and hopefully you guys can join, ask us questions, and be more interactive. So over to you, Sam. Thank you. Right. So I think Krish, like before parting, that's the last news that you covered. So ऐसे news हम लोग और देखते हैं bull run के time पे next 100x, 1000x, million x. So that's where I was just joking when Shobik started. He like 100x coin batao, but we never start with that 100x narrative. So we want to be like the sharer of knowledge कि आप कैसे क्या चीजें कर सकते हो. So that's why we are trying to open up with a live session ताकि आप directly question पूछ पाओ, because अभी थोड़ा सा गैप है, because you are just seeing these videos and जो भी problems है या questions है आप शायद comments में पूछ रहे हो या आप कहीं और जाके पूछ रहे हो. So it's better कि अगर हम लोग live interact कर पाए through this podcast and we can take it. So from next week, I think we'll do live session. So we'll announce it through all our platforms and it will be a multi-stream maybe. So you can join in on whichever platform जिसमें आप comfortable हो, जिसमें आप ज़्यादा time spend करते हो. Obviously not Friend.tech. It will be on Twitter, YouTube, Telegram, not Telegram, Twitter, YouTube, on maybe Facebook, LinkedIn. Yeah. So you can join in from any of those platforms and we'll continue the discussion there. You can ask in questions in between. We'll have a refined model, maybe like some news and some questions from you guys. So depending on the audience interaction, we'll take the initiatives to change the format of the show and give more knowledge to you guys. So that was it from our side. So see you this week on a live session and let's discuss the new things and get ready for the next 1000x coin. Hopefully. No, Bye-bye. guys. So it will be like next bull run. So thank you guys for watching and please do subscribe us to get a notification of the live sessions that we are going to organize soon. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye.